تاکہ پاک رسمیں واجب طور پر ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کم والی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے بڑے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ آمین۔ اصلی نور زندہ قدوس آسمانی باپ، تو رحیم ہے، تو نے رحم کیا، آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا کہ آج ہم ایمانی مضبوطی حاصل کرتے ہوئے تیرے نام میں آگے بڑھتے جائیں۔ اے عظیم باپ، آج تیرے سے التجا منت کرتے ہیں، ہم سبھی کی تو بڑی نگہبانی حفاظت کر، ہمیشہ اپنے نام جلال کے لیے استعمال کر، اور اسی طرح ہمیں موقع فراہم کر کہ تیرے نام لینے کے لیے مقدس محفلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ روبرو ہوتے رہے۔ اے عظیم باپ، آج تیرے سے التجا کرتا ہوں، ہم سب پر تو اپنی نگاہ رحم کر، تمام غلطی خطاؤں کو معاف کر، اور آئندہ زندگی میں یہ فضل دلیری عطا کر کہ آئندہ زندگی تیرے کلام کو مانتے ہوئے، تیرے حکموں پر چلتے ہوئے گزارنے کے قابل بنے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، اس کی 3 سے 8 آیات تک۔ اس نے بہت سی دلیلوں سے انہیں ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیا چاہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جنہیں باپ نے اپنے ہی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پاکان کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تمار اسے دیا گیا، اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دو۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی
اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں، اور وہ تمہار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا، اور سب نے اس پر گواہی دی، اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ وہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کیجیے۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ خیال رہے کہ جن شخصوں کو آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ باقاعدہ تیار کیے گئے ہوں اور ہاتھ رکھے جانے کے لائق ہوں۔ میں نے انہیں تعلیم دی اور ان کی نسبت دریافت کیا ہے، میری دانست میں وہ اس لائق ہے۔ آپ جن کا استحکام ہونے کو ہے ضرور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر صعود فرمانے سے پیشتر اپنے شاگردوں کو روح القدس کی بخشش دینے کا وعدہ یہ کہہ کر کیا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ہمارے بپتسمے کے وقت ہمارے ماتھوں پر صلیب کی شکل بنائی گئی تھی، یہ اس بات کا نشان تھا کہ ہم دنیا کے سامنے مسیح مصلوب کے ایمان کا اقرار کرنے سے نہ شرمائیں اور جیتے دم تک مردانگی سے اس کے وفادار سپاہی بنے رہیں۔ ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ نے ان ذمہ داریوں کو بخوب سمجھ لیا ہوگا جن کا تم اب علانیہ اقرار کرو گے، اور یہ بھی کہ آپ فروتنی کے ساتھ پختہ ایمان رکھتے ہو کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں روح القدس کی قوت آپ کو مسیح کے سچے گواہ ہونے کی توفیق دے۔ پس ہم چاہیے کہ آپ خدا کے حضور اور اس جماعت کے سامنے پکا وعدہ کرو کہ آپ اپنے بپتسمے کے وعدوں کو خود اپنی زبان سے دہرانے کے ذریعے خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو گے۔ کیا تم یہاں خدا کے حضور اور اس جماعت کے روبرو شیطان اور اس کے سب کاموں کو، اس دنیا کی نکمی دھوم دھام اور حشمت اور ہر طرح کے لالچ کو اور جسم کی گناہ آلودہ خواہشوں کو ایسا ترک کرتے ہو کہ نہ تو اس کی پیروی کرو گے اور نہ اس کے قبضے میں رہو گے؟ میں ان سب کو ترک کرتا ہوں۔ کیا تم مسیحی ایمان کے سب مسائلوں کو جو رسولوں کے عقیدے میں پائے جاتے ہیں مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں۔ کیا تم فرما برداری سے خدا کی پاک مرضی اور حکموں کو مانو گے اور زندگی بھر ان پر چلو گے؟ میں خدا کی مدد سے ایسا ہی کروں گا۔ بپتسمے کے وقت تمہارے ماتھے پر صلیب کا نشان بنایا گیا تھا، کیا تم مانتے ہو کہ اس نشان کے سبب تمہارا فرض ہے کہ تم مسیح مصلوب کے ایمان کا اقرار کرو گے اور اس کے جھنڈے تلے مردانہ وار لڑو گے اور جیتے دم تک اس کے وفادار سپاہی اور خدمت گزار بنے رہو گے اور کلام اور کام سے اس کی گواہی دیتے رہو گے؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں کہ یہی میرا فرض ہے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ خدا کا نام مبارک ہو ابد سے ابد تک۔ خداوند ہماری دعا سن اور ہماری فریاد اپنے پاس پہنچنے دے۔
اے قادر مطلق اور ازلی خدا، تو نے کرم کر کے اپنے بندوں کو پانی اور روح القدس سے نیا جنم دیا ہے اور سب گناہوں کی معافی بخشی ہے۔ اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ روح القدس قوت بخشنے والے سے انہیں قوی کر اور ان میں اپنے فضل کی بے شمار نعمتیں روز بروز بڑھاتا رہ، یعنی حکمت اور سمجھ کی روح، مصالحت اور روحانی قوت کی روح، معرفت اور سچی خدا پرستی کی روح، اور اے خداوند اپنے پاک خوف کی روح سے انہیں اب اور ہمیشہ معمور رکھ۔ آمین۔ اے خدا، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی چندہ کو پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیرے ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آمین۔ اے خداوند، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی نگت کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ کیا؟ حمید بھی۔ اے خداوند، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی حمید بی بی کو پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آمین۔ اے خدا، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی سماریہ کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آمین۔ نام پہلے بتا دیا کرو۔ کائنات۔ اے خداوند، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی کائنات کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ کومل۔ اے خدا، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی کومل کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آمین۔ اے خدا، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی ستائش کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ اے خداوند، اپنے آسمانی فضل سے اپنے بچی عطیہ کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آپ کا نام کیا؟ اے خداوند، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی سائمہ کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہی میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آمین۔ آپ کا نام کیا؟ اے خداوند، اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی رضیہ کو اپنی پناہ میں رکھ
تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آپ کا نام کیا؟ آصف۔ اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے بیٹے آصف کو اپنی پناہ میں رکھ، تاکہ وہ ہمیشہ تیرے وفادار بنا رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتا جائے۔ آپ کا نام کیا؟ گلفام۔ اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے بیٹے گلفام کو پناہ میں رکھ، تاکہ وہ ہمیشہ تیرا وفادار بنا رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتا جائے۔ آپ کا نام کیا؟ اعظم۔ اعظم۔ اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے بیٹے اعظم کو اپنی پناہ میں رکھ، تاکہ وہ ہمیشہ تیرا وفادار بنا رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتا جائے۔ آپ کا نام کیا؟ جمشید۔ اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے بیٹے جمشید کو اپنی پناہ میں رکھ، تاکہ وہ ہمیشہ تیرا وفادار بنا رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتا جائے۔ مناجات کے بعد اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے بیٹے وسیم کو اپنی پناہ میں رکھ، تاکہ وہ ہمیشہ تیرا وفادار بنا رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتا جائے۔ آپ کا نام کیا؟ عاشر۔ اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنے بیٹے عاشر کو اپنی پناہ میں رکھ، تاکہ وہ ہمیشہ تیرا وفادار بنا رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتا جائے۔ اطمینان آپ کے ساتھ ہو۔ ہم سب مل کر دعا کریں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، قرض دار کو بخشتے ہیں، ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ تو میرے جیون کا پانی ہے، تو میرے جیون کی روٹی ہے۔ اگر نویں پنڈوں کے خون آتے ہیں نا تو بھائی بات کر سکتے ہاں جی شکر ہے خدا کا۔ پورا فارمیٹ ہونا جگہ فالو کیا شارٹ نہیں کیتا۔ تیرے
रोटी के साथ तोहफा मिटावेगा यीशु मेरा, तोहफा मिटावेगा यीशु मेरा, रखेगा वो तुझको दिल से लगा कर, अपना बना लेगा तुझको मेरा बाप, रखेगा वो तुझको दिल से लगा कर, अपना बना लेगा तुझको मेरा बाप, तू मेरे जीवन की रोटी
बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आपके साथ हो। आपके भी साथ हो। मसीह खुदावंद ने मेरे अजीज़ों, आप सबको जो खुदावंद की अलतार के गिर्द जमा हैं, आप सबको दोपहर का सलाम और खुदावंद के घर में खुश आमदीद। आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी का मौका कि जब हम सेंट फिलिप एंग्लिकन कैथोलिक चर्च में यहाँ पर अपने चौपाने आला तकद्दुस माप बिशप मुश्ताक एंड्रयू के साथ तमाम डीकन साहिबान और काहिन साहिबान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि इनके साथ मिलकर सेंट जॉन चर्च नवा पेंट की कलीसिया के बच्चों को इस्तेकाम का साक्रामेंट दिया जा सके। और ईस्टर के इन अयाम में जब हम खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, हम उसका तजर्बा अपनी ज़िंदगियों में कर रहे हैं। खुदावंद से दुआ मांगते हैं कि आज हमारा यहाँ पर आना, हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना और इस्तेकाम का साक्रामेंट सबसे पहले सेंट फिलिप एंग्लिकन कैथोलिक चर्च के लिए, फादर शजील और उनकी टीम के लिए, और जो नवा पेंट चर्च सेंट जॉन चर्च है इसकी कलीसिया के लिए बहुत सी बरकत का बायस बने। और आज हम कलाम के वसीले से जो भी सीखें और रूह कुदस इसी तरह हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम आज जो रूह कुदस की बातों को अपनी ज़िंदगियों में लेकर जाएं, रूह कुदस की बातों को जब हम अपनी ज़िंदगियों में उतारें इस्तेकाम के साक्रामेंट के वसीले से, कि खुदावंद खुदा हमें हमेशा अपनी पाक मर्ज़ी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम उसके लायक बेटे और बेटियां बनकर उसके पाक कलाम पर अमल करते हुए उसी की पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में गुजारें और जी उठे मसीह का तजर्बा सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में और फिर दूसरों की ज़िंदगी तक पहुंचा सकें। आइए इसी रूहानियत में बढ़ते हुए हम अक़दस कुर्बानी में जो है वो आगे बढ़ेंगे। अजीज़ों, हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि पाक रस्म वाजिब तौर पर अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवाली सब फरिश्ता और मुकद्दस हूँ और आप सबसे बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। आप ऐसी नूर जिंदा कदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि तूने हमें इस काबिल समझा कि अपने ईमान का इजहार कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ अजीम कदूस बाप, आज तेरे से इल्तिजा मिन्नत करते हैं, आज के इस पाकमास के वसीला से तू हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर, ताकि हम इस काबिल बने कि ईमान में मजबूती हासिल करते हुए पाक रूह की मदद से तेरे हुक्मों को मानते हुए और तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाए, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भाई खादम के घर की तरफ आऊं, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने एक इबादत रखवाई है और इस्तेकाम के साक्रामेंट की परफॉर्मेंस के लिए भी फादर जी के साथ मिलकर और बाबूजी के साथ मिलकर नवे पिंड की कलीसिया को मदऊ किया, तैयार करवाया कि उन बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए
जो अभी तक इस्तेकाम दिया जाए, जिन्होंने अभी तक इस्तेकाम नहीं लिया। तो फादर जी किधर बैठे हैं, फादर सरजील और बाबू जवेद साहब और भाई खादम और नवे पिंड की कलीसिया, मैं इंतहाई खुश हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका बख्शा कि मैं एक पासबानी खिदमत के तहत यहाँ आपके दरमियान खड़ा हूँ और आपके साथ बात भी करूँगा और इस इस्तेकाम के दिन पर उन बच्चों को ख़ास तौर पर पैगाम दूँगा कि जो इस्तेकाम के लिए आए हैं कि मेहरबान खुदा आज के इस सक्रमेंट की बदौलत उनको मजबूत करे, गवाही देने के काबिल बनाए और जो जो मसीही जिम्मेदारियां हैं वो ऐसन तरीके से वो पूरा करते जाएं। और एक बार फिर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ये दिन मखसूस किया ताकि आपके नवे पिंड के बच्चों को इस्तेकाम का सक्रमेंट दिया जाए। ये 7 सक्रमेंटों में से एक सक्रमेंट है। 7 सक्रमेंट आते हैं ना, सबको आते हैं ना, उनमें से ये एक सक्रमेंट है जिसे इस्तेकाम का सक्रमेंट हम कहते हैं। और इस्तेकाम से मुराद ये होता है कि मजबूत करना, मुस्तहकम करना, पक्का करना। किस चीज में पक्का करना, कैसे पक्का करना? रस्म तो है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जो खुदावंद आज हमें दे रहा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहां पर खुदा अपने चुने हुए लोगों को और चुने हुए बंदों को मखसूस करता है, मजबूत करता है और गवाही देने और कलाम फैलाने की ताकत बख्शता है। और आज ये कलाम भी इसी हवाले से है कि हम भी अपने उन बच्चों को तैयार करें, मजबूत करें, ताकि वो खुदा के कलाम की गवाही मजबूती के साथ, पुख्ता ईमान के साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने इर्द गिर्द के मज़ाहब को और अपने इर्द गिर्द के इलाकों को दे सकें कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। और ये गवाही देने के लिए आज मैं भी आया और मेरे साथी भी आए और जितनों ने पहले इस्तेकाम का सक्रमेंट लिया है, हम सब इसके लिए हाजिर हुए हैं। आज के इस मौजू पर जब यीशु मसीह जिंदा हो चुके लेकिन आसमान पर नहीं गए, अभी जिंदा होने और आसमान पर जाने के दरमियान अपने शागिर्दों को बहुत मजबूत करते हैं, बहुत कुव्वत देने के सबक देते हैं और वो अधूरा मिशन नहीं छोड़ना चाहते। जिस तरह उन्होंने जोश के साथ, निडर होकर, बेबाक होकर, दलेर होकर खुदा के कलाम को इस दुनिया में फैलाया, उसी तरह वो चाहते थे कि उनके शागिर्द भी इसी तरह मजबूत और मुस्तहकम हो, इसी तरह वो बहादुर बने, उनके अंदर से खौफ निकल जाए, उनके अंदर से डर निकल जाए। क्योंकि जब तक उनके अंदर डर रहेगा, खौफ रहेगा बरूनी ताकतों का, बरूनी मजहबों का, बरूनी
قوتوں کا، اس وقت تک وہ زندہ خدا کی گواہی نہیں دے سکتے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ لہذا اس کے لیے وہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ کرتے ہیں، ایسا وعدہ جسے ہم قوت کا وعدہ کہتے ہیں۔ یہ قوت کا وعدہ یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اور آسمان پر جانے سے پہلے کر دیا، تاکہ اس کے لوگ، تاکہ اس کے شاگرد، تاکہ اس کے ماننے والے، تاکہ اس کے پیروکار، تاکہ اس کے وہ لوگ جنہوں نے آگے کلام کو پھیلانا، آگے گواہی کو پھیلانا ہے، وہ مضبوط اور مستحکم ہوں، پکے ہوں، پختہ ہوں، تب جا کر وہ اس گواہی کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا لیکن جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ روح القدس جس دن تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، ایسی قوت پاؤ گے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ بہت بہادر ہوتے ہوں گے، آپ بہت دلیر ہوتے ہوں گے، لیکن اتنے دلیر نہیں ہوں گے جتنے دلیر اس روح القدس پانے کے بعد آپ ہوں گے، کیونکہ یہ روح القدس خدا کی طرف سے آپ پر ہوگا۔ یہ قوت آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کی لیاقت کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ قوت نہ آپ کے مسلز کی وجہ سے ہے، نہ اپنے بڑے پن کی وجہ سے ہے، نہ آپ کی دولت کی وجہ سے ہے، نہ آپ کے اختیار کی وجہ سے ہے، نہ آپ کے منصب کی وجہ سے ہے۔ یہ قوت آپ کو خدا خود دے رہا ہے، اور وہ ہے روح پاک کی قوت، کیونکہ جس کے پاس روح پاک کی قوت ہوتی ہے وہ دلیر ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، اور اس کی بہادری ہم نے دیکھ لی ہے، ہم نے شاگردوں کی زندگی میں دیکھ لی ہے۔ وہ شاگرد جو یسوع کو غم اور دکھ میں چھوڑ کر چلے گئے، تکلیف میں چھوڑ کر چلے گئے، صلیب پر لٹکتا ہوا دیکھ کر چلے گئے، لیکن جب روح القدس کا وعدہ اس سے کیا گیا اور روح القدس ان کو ملا تو وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک قوت کے ساتھ آگے بڑھے، ایسی قوت جو انسان کی قوت سے کہیں زیادہ ہے، اس کے علم سے کہیں زیادہ ہے، اس کی دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے یہ قوت ملتی ہے۔ جب خدا کی طرف سے قوت ملتی ہے تو کمزور سے کمزور، لاغر سے لاغر، لچار سے لچار، غریب سے غریب بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہو کر یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب رسولوں پر یہ روح القدس نازل ہوا تو پترس جس نے یسوع کا انکار کیا، وہ بھی کسی مرد کے سامنے نہیں، ایک لانڈی کے سامنے اقرار کیا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا، میں یسوع کو نہیں جانتا۔ لیکن روح القدس ملتے ہی، پاک روح کی قوت ملتے ہی، یہ 3000 سے زیادہ لوگوں میں کلام کرتا ہے اور یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور آج یسوع نے ایک نمونہ دیا ہے، ایک سبق دیا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس قوت کو پانے کا۔ کیا ہم یہ قوت جب حاصل کرتے ہیں یا ہمیں دی جاتی ہے تو کیا ہم اپنے ذاتی نام کی خاطر، اپنے جلال کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر یا اپنا بڑا پن دکھانے کی خاطر ظاہر کرتے ہیں؟ کس کے لیے
ये कुव्वत हमें दी जाती है, हमें अपना बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के जिंदा होने की गवाही देने के लिए कुव्वत मिलती है। अगर ये कुव्वत मिलती है मुर्दे जिंदा करने की, अगर ये कुव्वत मिलती है बीमारों को अच्छा करने की, अगर ये कुव्वत मिलती है तबलीग करने की, अगर ये कुव्वत मिलती है गरीबों तक पहुंचने की, तो ये कुव्वत आपकी अपनी नहीं बल्कि खुदा की दी हुई कुव्वत है, और खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप नहीं इस्तेमाल हो रहे, बल्कि वो रूह जो आपको मिलता है, जिस तरह आज जिन्होंने इस्तेकाम पाना है या जो पा चुके हैं, जो हम में से हैं, ये कुव्वत अगर हमें मिली है तो ये मेरी किसी लियाकत की वजह से नहीं, किसी खूबी की वजह से नहीं, किसी तालीम की वजह से नहीं, बल्कि ये उसके फजल की बदौलत हम पर हुआ है कि खुदा ने हमें ताकत बख्शी है। और इस ताकत बख्शने के लिए उसने हमारे सामने एक मिशन रखा है, और वो मिशन क्या है? गवाही, कि जाओ जाकर सारी दुनिया में इसकी गवाही दो। और उसका पैटर्न बड़ा खूबसूरत आज यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया, और वही पैटर्न आज हमें भी दे रहा है। वो पैटर्न क्या है देखिए जरा। लेकिन जब तुम रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पहला लफ्ज उसने चुना यरूशलेम। क्यों यरूशलेम चुना? पहले अपने आप से सवाल हम करते हैं कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को क्यों कहा कि पहले तुम यरूशलेम से गवाही देना शुरू करना? क्यों? क्योंकि यरूशलेम से उसके खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। यरूशलेम से उसके खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। यहूदी फकीरों और फरीसियों ने हैकल में खड़े होकर उसके खिलाफ बगावत की, इर्द गिर्द के शहरों में उसके साथ उसकी बगावत की, क्योंकि वो नहीं पसंद करते थे यीशु मसीह को, ना उसकी तालीम को पसंद करते थे, ना उसके मुजज़ों को पसंद करते थे, ना उसकी बातों को पसंद करते थे। तो जी उठने के बाद उन्होंने कहा पहले तुम यरूशलेम से शुरू करना, अपने घर से शुरू करना, अपने मोहल्ले से शुरू करना, अपनी बस्ती से शुरू करना, अपने दोस्तों से शुरू करना, अपने रिश्तेदारों से शुरू करना। यह था इसका मतलब कि पहले तुम यरूशलेम से शुरू करना। उसके बाद उसने कहा सारे यहूदिया से क्या मुराद थी कि तुम यरूशलेम से हटकर दूसरे शहरों तक भी जाना, दूसरे इलाकों तक भी जाना, पूरे मुल्क के अंदर जाना, और जाकर इस बात की गवाही देते फिरना। और लिखा है कि वो जगह जगह गए और मसीह यीशु के जिंदा होने की गवाही देते रहे। इसलिए यहूदा का मतलब है कि दूसरे इलाके में भी जाकर देना। और तीसरी बात उसने कहा और सामरिया, और सामरिया के दो माने थे, क्योंकि अगर वो ये जाहिर ना करता, इसका जिक्र ना करता यीशु मसीह, तो जिस तरह यहूदी सामरियों को बुरा समझते थे, सामरियों को निचले दर्जे का समझते थे, उनके शहर में से गुजरना पसंद नहीं करते थे, उनकी बस्तियों में से गुजरना पसंद नहीं करते थे, उनसे नफरत करते थे, तो खुदावंद उस नफरत को तोड़ता है। खुदावंद उनके दरमियान जो समाजी और मजहबी दरार थी उसको तोड़ता है कि नहीं, वो भी इस काम के लिए हैं, उन्हें भी नजात की जरूरत है, लिहाजा तुम सामरिया में भी जाकर इसकी गवाही देना। इससे दूसरा मतलब यह है कि तुम गैर कौमों में जाकर भी यीशु के जिंदा होने की गवाही देना, क्योंकि सामरिया गैर कौमों की नुमाइंदगी करता है, और वो ये चाहता है खुदावंद कि तुम सिर्फ यहूदियों ही के लिए नहीं गवाही का सबब बनना, बल्कि गैर कौमों में, दूसरी कौमों में, जितनी भी कौमें हैं
उनमें जाओ और जाकर मसीह यीशु के जिंदा होने की गवाही दो, मेरे झूठने की गवाही दो, मेरे कलाम की गवाही दो, मेरी बातों की गवाही दो। ये था यीशु मसीह का वादा जो आज उसने अंजील कलाम मुकद्दस के मुताबिक दिया अपने शागिर्दों को। और उसके बाद वो फरमाता है कि बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो, जमीन की इंतहा तक, यानी यरूशलेम का एरिया, इस्राएल का एरिया, इससे निकल जाओ, दूसरी जगहों पर भी जाकर इसकी मनादी करो। तो हमारे सामने आता है कि जब शागिर्द पता नहीं किस किस इलाके में चले गए, रोम तक चले गए, जो उनकी टेरिटरी नहीं थी, वहां तक गए, पतरस वहां तक गया। उसके बाद हम पौलुस रसूल देखते हैं, जगह 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 वो जाता गया और खुदा के कलाम की मनादी करता रहा। और वही रूह जो उसने शागिर्दों को दी, वही रूह कन्वर्ट होती होती आप तक और मुझ तक आज पहुंची है। और हम भी देख रहे हैं अपनी आंखों से कि मसीहत की गवाही, यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही आज पूरी दुनिया में कोने कोने तक पहुंची है। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां तक मसीह यीशु के जिंदा होने की बशारत ना दी गई हो। हर जगह बशारत दी है। वो किसी लिहाज से भी, किसी भी तरीके से वो गवाही वहां तक पहुंची है। आज इन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं इस ईमान में पुख्ता करने के लिए कि ये काम सिर्फ कहनों का नहीं है, ये काम सिर्फ पास्टर्स का नहीं है, ये काम सिर्फ मनादों का नहीं है, ये काम सिर्फ बिशप का नहीं है। यहां पर जो वादा किया गया है वो सबसे किया गया है, हर उस शख्स के लिए किया गया है जो मसीह यीशु का मानने वाला या उसका पैरोकार है। आपको भी कुव्वत की जरूरत है। अगर शागिर्दों की कुव्वत की जरूरत थी, पाक रूह की जरूरत थी, तो आपको भी जरूरत है और मुझे भी जरूरत है। और इस पाक रूह को हम अपने अंदर रखें, अपने खानदानों में रखें। यरूशलेम से मुराद इधर हम ये भी ले सकते हैं आज कि मेरे घर के अंदर क्या मैं अपनी जात में जो मसीह यीशु का तजर्बा किया हुआ है, जो मसीह यीशु के मोजज़ों का तजर्बा किया हुआ है, उसकी बातों का तजर्बा किया हुआ है, उसने मेरी जिंदगी बदली हुई है, तो मुंह ना बंद कर दो, मुंह ना बंद कर दो, छुपा के ना रखो। जो रहम आप पर हुआ है उसको उजागर करो कि खुदा ने मुझ पर रहम किया है। अगर उसने आपको जमीन से उठाकर बुलंदियों तक किया है तो उसका जिक्र करो, बताओ लोगों को कि मेरी कावश नहीं, यह मेरे खुदावंद की कावश है, उस पाक रूह की कावश है, उस पाक रूह की कुदरत है जिसने मुझे इस काबिल किया। इसका मतलब है कि हम अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि खुदा की कुव्वत पर भरोसा रखें और इस बात की गवाही देते रहें जो खुदावंद ने आपको दिया है। अगर किसी को इल्म दिया है तो वो इसकी गवाही दे कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपने खुदावंद की वजह से हूं, पाक रूह की बदौलत हूं। तो खुदा मुझे आज इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं भी इसकी गवाही देता हूं कि मेरी कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की बढ़ोतरी है जिसने हमें इस काबिल बनाया। एक बात और आगे बढ़ाता हूं कि ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये सिर्फ जो यीशु मसीह ने आज कहा है कि तुम रूह कुदस पाओगे, ये एक वादा नहीं है, ये बल्कि एक मिशन है। ये आपको मिशन दिया गया है, जिस तरह रसूलों को मिशन दिया गया कि जाओ, जाकर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और सारी दुनिया में मेरी गवाही दो और मेरे गवाह बनो। इसी तरह वो आज मुझे और आप सबको भी यही मिशन दे रहा है कि मैं तुम्हारे सुपुर्द ये मिशन करता हूं कि जाओ अपने अपने देश में, अपने अपने खानदान में, अपने अपने दोस्तों में, अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, चाहे
किसी तरह के भी लोग, हिंदू लोग रह रहे हैं, उनमें कलाम सुनाओ, उनके अंदर गवाही दो। मुसलमान भाई रह रहे हैं, उनको गवाही दो। सिख भाई रह रहे हैं, उनको गवाही दो। हर तरह की बरादरी, हर तरह के मजहब में इस बात की गवाही दो कि मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम इस गवाही के लिए तैयार रहें, और जिन बच्चों ने इस्तेकाम का सक्रमेंट लेना है वो आजिज़ी के साथ, संजीदगी के साथ इस पर गौर करें। बाप और बेटे और मसीह में ए बुजुर्ग बाप, मैं इन शख्सों को हाथ रखे जाने के लिए आपके सामने पेश करता हूँ। ख्याल रहे कि जिन शख्सों को आप हमारे सामने पेश करते हैं वो बाकायदा तैयार किए गए हों और हाथ रखे जाने के लायक हों। मैंने इन्हें तालीम दी है और इनकी निस्बत दरियाफ्त किया है। मेरी दानिश में वो इस लायक है। आप जिनका इस्तेकाम होने को है, ज़रूर याद रखना कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पेशतर अपने पहले शागिर्दों को रूह कुद्स की बख्शिश देने का वादा ये कहकर किया था कि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमारे बपतिस्मे के वक्त हमारे माथों पर सलीब की ये शक्ल बनाई गई थी। ये इस बात का निशान है कि हम दुनिया के सामने मसीही मसलूब के ईमान का इकरार करने से ना शर्माएं और जीते दम तक मर्दानगी से उसके वफादार सिपाही और खिदमत गुजार बने। हमें भरोसा है कि आपने इन जिम्मेदारियों को खूब समझ लिया होगा जिनका आप एलानिया इकरार करोगे, और ये भी कि आप फरोख्तनी के साथ पुख्ता ईमान रखते हुए जहाँ कहीं भी आप हो, रूह कुद्स की कुव्वत आपको मसीह के सच्चे गवाह होने की तौफीक देगी। बस हम ये चाहते हैं कि आप खुदा के हुजूर और उस जमात के सामने पक्का वादा करो कि आप बपतिस्मा के वादों को खुद अपनी ज़ुबान के दोहराने के ज़रिए खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को वफ़ करोगे। अभी बिशप साहब आपसे जो आपके वालिदैन ने आपके बिहाफ पर बपतिस्मा के वादे किए थे वही आपसे दोहराएंगे। क्या तुम यहाँ खुदा के हुजूर और इस जमात के रूबरू शैतान और उसके सब कामों को, इस दुनिया की नकम्मी धूमधाम और हशमत और हर तरह के लालच को और जिस्म के गुनाह आलूदा ख्वाहिशों को ऐसा तर्क करते हो कि ना तो इसकी पैरवी करोगे और ना इसके कब्जे में रहोगे? मैं इन सब को तर्क करता हूँ। क्या तुम मसीह ईमान के सब मसाइल को जो रसूलों के अकीदे में पाए जाते हैं मानते हो? मैं मानता हूँ। क्या तुम फर्मा बरदारी से खुदा की पाक मर्जी और हुक्मों को मानोगे और ज़िंदगी भर उन पर चलोगे? मैं खुदा की मदद से ऐसा ही करूँगा। बपतिस्मे के वक्त तुम्हारे माथे पर सलीब का निशान बनाया गया था। क्या तुम मानते हो इस निशान के सबब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मसीही मसलूब के ईमान का इकरार करोगे और उसके झंडे तले मर्दाना वार लड़ोगे और जीते दम तक उसके वफादार सिपाही और खिदमत गुजार बने रहोगे और कलाम और काम से उसकी गवाही देते रहोगे? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि यही मेरा फ़र्ज़ है। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदा का नाम मुबारक हो अबद से अब तक। खुदावंद हमारी दुआ सुन और हमारी फरियाद अपने पास पहुँचने दे। ए कादर मुतलक और अज़ली खुदा, तूने करम करके अपने बंदों को पानी और रूह कुदस से नया जन्म दिया है और सब गुनाहों की मुआफ़ी बख्शी है। ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि रूह कुदस कुव्वत बख्शने वाले से उन्हें कवी कर और उनमें अपने फजल की बेशुमार नेमतें रोज़ बरोज़ बढ़ाता रहे, यानी हिकमत और समझ की रूह, मसलहत और रूहानी कुव्वत की रूह, मार्फत
اور سچی خدا پرستی کی روح، اور اے خداوند اپنے پاک خوف کی روح سے انہیں اب اور ہمیشہ معمور رکھ۔ آمین۔ جتنے بھی امیدوار یہاں پر موجود ہیں ابھی ان کو استحکام کا ساکرامنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور باری باری بشپ جی کے پاس آ کر وہ اپنا گھٹنا ٹیکیں گے اور بشپ جی ان کے لیے دعا کریں گے اور استحکام کا ساکرامنٹ دیں گے، اور کوائر جو ہے وہ روح القدس کا گیت گائے گی۔ اے خداوند اپنے آسمانی فضل سے اپنی بیٹی جمیلہ کو پناہ میں رکھ تاکہ وہ ہمیشہ تیری وفادار بنی رہے، اور جب تک تیری ابدی بادشاہ میں نہ پہنچے وہ تیرے روح القدس کو روز بروز حاصل کرتی جائے۔ آمین۔
खुदावंद का इत्मीनान आपके साथ हो। आपकी रूह पर भी हो। हम सब मिलकर वही दुआ करें जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही हैं। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं। ये वाजिब और दुरुस्त, ये वाकई वाजिब और नहायत नासबाए कदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने आसमान पर जाकर और तेरे दाहिने हाथ बैठकर वादे के मुताबिक रूल कुदस को लेपालक बच्चों के पास भेजा। इसलिए ज़मीन के सब बशिंदे नहायत शादमान होकर खुशियाँ मनाते हैं, और आसमान के तमाम फरिश्ते हमेशा ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। कुदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है, और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी, और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस साहिब आप, हम तेरे बेटे के मरने और जूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर। ए आसमानी बाप, सब बिशपों, काहिनों और डीकनों को, और ख़ासकर अपने खादमों हमारे मेट्रोपॉलिटन मार्क एवलन और हमारे बिशप मुशताक एंड्रयू को ऐसी तौफीक दे कि वो तेरे सच्चे और जिंदा कलाम को अपने चाल चलन और तालीम से जाहिर करें और तेरे पाक साक्रामेंटों को वाजिब तौर से अदा करें। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं, तू हम इन सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। सलामती आपके साथ हो, सलामती आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक रखने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को मुखलसी बख्शे। हमें अपने पाक बदन और खून के ज़रिए हर गुनाह और हर बदी से बचा, हमें हमेशा अपनी मर्जी से चला, हमें अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ, लेकिन सिर्फ कह ही दे कि मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन में हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
हम दुआ मांगे। ए कादर मुतलक खुदावंद और अज़ली खुदा, हम अर्ज़ करते हैं कि तू अपने लुत्फ़ से हमारे दिल और बदन दोनों की ऐसी हदायत और तकदीस फरमा कि हम तेरी शरअ और अहकाम की राह पर चलें, ताकि तेरे कामल कुदरत की हमायत से इस जहान में और अब तक हमारे जिस्म और रूह हमेशा महफूज रहें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सलामती के साथ जाओ, हौसला रखो, जो बातें अच्छी हैं उनको मजबूती से पकड़े रहो, किसी से बदी के इवज बदी ना करो, बेदिलों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, मुसीबत ज़दों की मदद करो, सब आदमियों की इज्जत करो, रूह कुदस की कुदरत में खुश रहकर खुदामंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। और अब कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल फरमाए। आमीन। इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रुखसत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया।